I want to talk to you this evening इस शाम को मैं आपसे बात करना चाहता about the हूँ 7 words which Jesus spoke on the cross. जो क्रूस पर यीशु ने 7 शब्द कहे उनके बारे में। Okay, so the first word, तो पहला जो शब्द, yeah, it's called forgiveness. उसे कहते हैं क्षमा। It's a very powerful word. ये बहुत सामर्थ्यवान शब्द है। Yeah, Jesus, यीशु he spoke some words on the cross of Calvary. उन्होंने कलवरी के क्रूस पर कुछ शब्द कहे। Luke 23 verse 34. लूका 23 अध्याय वचन He said 34। like this, उन्होंने ऐसा कहा, Father, पिता forgive them उन्हें क्षमा करो because they do not know क्योंकि उनको पता नहीं what they are doing. वो क्या कर रहे हैं। But that afternoon, लेकिन उस दोपहर को Jesus is hanging on the cross. यीशु क्रूस पर लटके हुए थे And for nearly 24 hours, और लगभग 24 घंटों तक Jesus is going through intense pain and suffering. यीशु बहुत भयानक दर्द और सताव से गुजर रहे He थे। was betrayed, उनको धोखा दिया he गया, was humiliated, उनको नीचा दिखाया he गया, was spit upon, उनके ऊपर थूका गया, a false trial was done, झूठे आरोप उन पर लगाए गए and finally, और अंत में he was condemned to die on the cross. उनको जो दोषी ठहराया गया कि वो क्रूस पर मारे In जाएं। that whole इस process, पूरी प्रक्रिया he's में going through a lot of pain. वो बहुत सारे दर्द से गुजर And रहे हैं finally, he's on the और अंत cross. में वो क्रूस पर लटके। As he's on the cross, जैसे वो क्रूस पर the है, sin of the whole world is upon him. पूरे संसार का पाप उनके ऊपर The है, sickness, बीमारी, he is cursed. वो श्रापित हुए And the poverty of mankind is upon him. और मनुष्य जाति की जो गरीबी है उनके ऊपर आई। There's no clothes on his body, उनके शरीर पर कोई कपड़े नहीं है and he is hanging over there. और वो वहां लटके हुए हैं। But on that cross, लेकिन उस क्रूस पर in that deep, deep pain, वो बहुत गहरे दर्द में Jesus was praying. यीशु प्रार्थना कर रहे थे। I don't think he got upset and angry on that cross. मुझे नहीं लगता कि वो क्रूस पर नाराज हुए या गुस्सा हुए, But लेकिन even in that deep pain, वो गहरे दर्द में भी he spoke these beautiful words. उन्होंने ये सुंदर शब्द बोले, Lord, प्रभु please forgive them. कृपा करके उन्हें क्षमा करो। Now down on the ground, वहां पर नीचे जमीन के ऊपर in Matthew chapter 27, मत्ती 27 अध्याय verse 40, वचन 40, verse 43, वचन 43 and verse 44. और वचन 44, 40, वचन 40, 43, वचन 43 44. और 44। Okay. So down on the ground, नीचे जमीन के ऊपर lay people like us, हमारे ऐसे आम लोग they were looking at Jesus वो यीशु को देख रहे थे and they were laughing at him और वो हंस रहे थे उनको and they देख were के mocking him और उनका मजाक उड़ा रहे and थे they were saying, और वो कह रहे थे, if you are really the son of God, यदि तुम सच में परमेश्वर के पुत्र हो come down. नीचे उतर आओ। But thank God, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, he did not get angry, उनको गुस्सा नहीं आया, he did not get upset, वो नाराज नहीं हुए and he did not come down. और वो नीचे नहीं उतर आए। If he would have come down, अगर वो नीचे उतर आते we couldn't been sitting over here. तो हम सब यहाँ बैठे नहीं होते। Then there were these religious people. फिर उसके बाद धार्मिक लोग भी थे, They were also mocking him. वो भी उनका मजाक उड़ा रहे And they थे were saying, और वो कह रहे थे, you said you are the king of Jews. तुमने कहा कि तुम यहूदियों के राजा हो, Why don't you come down? तो क्यों ना तुम नीचे आओ, We will believe you. तो हम तुझ पर विश्वास करेंगे। Everywhere there was mockery happening. हर जगह उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। Words are like knives. शब्द जो है छुरे के समान है, Words are like spears. शब्द जो है भाले के समान है, Words are like stones. तो शब्द जो है पत्थरों के समान They है। are more stronger and more deeper than all the physical weapons. ये सारे स्वाभाविक हथियार जो है उससे बहुत वो खतरनाक है। And then after that, और उसके बाद there were two thieves, one on the left, one on the right. दो चोर थे, एक दाई ओर एक बाई ओर, And one was saying to Jesus, और उसमें से एक यीशु से कह if रहा you are था, really the Messiah, अगर आप सच में मसीहा हो why don't you come down? क्यों ना आप नीचे उतर आओ, Save yourself खुद को बचाओ and save us also. और हमें भी बचा लो। But thank God, लेकिन प्रभु का he धन्यवाद did हो, not come down. वो नीचे नहीं आए, He did not get angry. उनको गुस्सा नहीं आया। Why? क्यों? Because he prayed like this. क्योंकि उन्होंने ऐसे प्रार्थना Father, की, पिता forgive them. उन्हें क्षमा करो, They don't know what they are doing. क्योंकि उनको पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, But I know लेकिन मैं जानता हूँ what I am doing. मैं क्या कर रहा हूँ। Anger गुस्सा comes because you don't know what's happening. वो इसीलिए आता है क्योंकि आपको पता नहीं कि क्या हो रहा But है। Jesus hanging on the cross, लेकिन यीशु क्रूस पर लटके हुए, all that pain, वो सारे दर्द के साथ, with all that वो suffering, सारे सताव के साथ, still he was able to say, फिर भी वो कह पाए, Father, पिता please forgive them. कृपा करके उन्हें क्षमा करो। In the deepest pain, वो गहरे दर्द में भी Jesus was willing to offer mercy. यीशु जो दया देने के लिए तैयार थे। What a hero we have. क्या हीरो है हमारा। What is mercy? दया क्या है? With respect to sin, पाप के बारे में, God, don't give me what I deserve. प्रभु जिस चीज के मैं लायक हूँ वो आप मुझे मत देना, Don't give me what I deserve. जो मैं लायक हूँ वो मत देना। What do I deserve? मैं किस चीज के लायक हूँ? Judgment. न्याय के। What do I किस deserve? चीज के मैं लायक हूँ? Death. मृत्यु के। But
Lord, लेकिन प्रभु please, कृपा करके don't give me what I deserve. जिसके मैं लायक हूँ वो चीज मुझे मत दो। Then what do you want? फिर तुझे क्या चाहिए? Give me grace. मुझे अनुग्रह दो। What is grace? अनुग्रह क्या है? God gives you what you don't deserve. जिस चीज के आप लायक नहीं हो प्रभु आपको वो देते हैं। On that cross, उस क्रूस पर as Jesus was hanging जैसे यीशु लटके हुए in थे that deep वो pain, गहरे दर्द में, yet फिर भी from there, वहां से भी his heart cried उनका out. हृदय पुकार के कहा, And he said, उन्होंने कहा, Father, पिता don't count this against them, ये इनके खिलाफ मत लिखना, but लेकिन have mercy. दया करो। Bible says, बाइबल कहती है यीशु John 1:17, यूहन्ना 1:17 में grace and truth came through Jesus. अनुग्रह और सच्चाई यीशु के द्वारा आई। But लेकिन think about it. इसके बारे में The सोचो, pain that he went जो through. इस दर्द से वो गुजरे, Oh, the suffering that he went जो through. सताव से वो गुजरे, Oh, the agony that he went through. जो कराहने से वो गुजरे, The blood that he shed. और जो लहू उन्होंने बहाया। Bible says, बाइबल कहती है without the shedding of blood, लहू बहाए बिना there is no forgiveness. पापों की कोई क्षमा नहीं। Hebrews chapter 9 verse 22. इब्रानियों 9 में 22, Without the shedding of blood, लहू बहाए बिना there's no forgiveness. क्षमा है ही नहीं। It's not the blood of the bulls and goats. वो कोई बैल या बकरी का लहू नहीं, Oh, no, 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 no. नहीं नहीं नहीं, Not the blood of a human being, किसी मनुष्य का लहू नहीं, but लेकिन the blood of God who became man. वो परमेश्वर का लहू जो मनुष्य बने थे, Precious blood. बहुमूल्य लहू, No blemish. उसमें कोई दोष नहीं, No spot. कोई दाग नहीं। That वो blood, लहू when it falls, जब वो गिरता है there is a cry in that blood. उसमें से पुकार आती है। What is that वो cry? पुकार क्या कहती है? Father, पिता have mercy on उन पर them. दया करो। Luke chapter 5 verse 32. लूका 5 में 32 It says like this. वचन ऐसे कहता है, Jesus said, यीशु ने कहा, I have come for the sinner. मैं पापियों के लिए आया हूँ। Yeah, सुनो, all have sinned. सबने पाप किया, I have also sinned. मैंने भी पाप किया। Yeah, maybe yours is some degree. हो सकता है आपकी मात्रा ऊपर होगी, Yeah, mine may be long. मेरी शायद छोटी होगी, But सबके लिए लेकिन सबके लिए शायद मेरा पाप इतना होगा, शायद मेरा पाप इतना होगा, आपका इतना ही होगा. आपका इतना ही होगा, लेकिन दोनों के लिए ना यीशु को लहू देना पड़ा. लेकिन दोनों के लिए यीशु को लहू देना पड़ा है। There is a wage for it. उसकी जो मजदूरी है, Yeah, there is a wage for it. उसकी मजदूरी है। Yeah, Romans 6:23, रोमियो 6:23, and it is called death. और उसे मृत्यु कहते हैं। Yeah, you are separated from God. आप प्रभु से अलग किए गए, But thank God लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो for Jesus. यीशु के लिए। उस दिन जब प्रभु यीशु क्रूस के ऊपर लटक रहे थे ना, वो हमारी जगह थी. उन्होंने कहा तू मत जा, मैं जाता हूं. आमेन। So there are two thieves. तो वहां पर दो चोर लटके, Yeah. How did he get saved? उनका उसका उद्धार कैसे हुआ? Actually उसने कुछ भी भले काम नहीं किए, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी भला काम नहीं किया. यानी जो यीशु ने बोला वो कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया. But something happened. लेकिन कुछ तो हुआ। Salvation doesn't depend on your work. उद्धार जो आपके कामों पर निर्भर नहीं है। Yeah. Luke 23 लूका 23 verse अध्याय 41. वचन 41। Yes. So one robber is saying to Jesus, तो एक चोर यीशु से कह रहा है, if you are the savior, अगर तुम उद्धार करता हो, you come down तुम नीचे उतर आओ and help us also. और हमारी भी मदद So the करो। other thief is saying, तो दूसरा चोर कहता है, shh, don't talk like that. ऐसे मत बोल। And he says, और वो कहता है, we deserve to be here. हम यहाँ पर होने के लायक है। Amen ने बोला, hello, we deserve to be here. हम यहाँ पर होने के लायक है, But this Jesus, लेकिन ये जो यीशु है, no. नहीं। परमेश्वर का आत्मा का प्रकाशन आया. ये जो यीशु है ना, वो अपने पाप के लिए लटका नहीं है. आमीन। हम हमारे लिए लटके हुए, ये खुद के लिए नहीं लटका हुआ. ये आमीन। something is happening over here. He कुछ said. तो यहाँ पर हो रहा है, वो कहते हैं। And suddenly और अचानक he got the revelation. उसको प्रकाशन मिला And he said, और उसने कहा, Jesus, यीशु remember मुझे me. याद रखना। And Jesus said, और यीशु ने कहा, today. आज ही। Number 3. तीसरा नंबर, Yeah. Jesus is hanging on the cross. यीशु क्रूस पर लटके हुए। John 19, यूहन्ना 19, verse 26, 27. यूहन्ना 19 में 26 और 27। Yeah. Now, number 3 तीसरा, is about care. वो जो है परवाह करने के बारे में। Jesus is hanging on the cross. यीशु क्रूस पर लटके हुए, Deep pain. बहुत गहरे दर्द में, But over there, लेकिन वहां पर भी his heart is thinking, उनका दिल सोच रहा है, what can I do? मैं क्या कर सकता हूँ, What can I do? मैं क्या कर सकता हूँ। About whom? किसके बारे में? His mother. उसकी माँ के बारे में। What was it thinking? वो क्या सोच रहा था? What will happen to this woman?
इस स्त्री के साथ क्या होगा आगे, What will be her future? उसका भविष्य क्या होगा आगे, He was thinking, वो सोच रहे थे। this woman, ये जो स्त्री, she carried me for 9 months. वो 9 महीने गर्भ में मुझे लेकर चली है, But now, लेकिन अभी she doesn't have her husband. उसका पति उसके पास नहीं है And I am not there. और मैं भी नहीं रहूंगा I'm going to die. और मैं मरने वाला हूँ। Third day, rise up. तीसरे दिन जी उठूंगा, I should do something for her. मैंने उसके लिए कुछ करना चाहिए। And he looks at his mother और वो अपनी माँ की ओर देखता and he है says to her, और उससे कहता है, Mom, माँ from today onwards, आज से आगे this person, ये जो व्यक्ति है, John, यूहन्ना, he will be your son. वो तेरा बेटा होगा। John, यूहन्ना, Mary will be your mother. मरियम आज से तेरी माँ होगी। And the Bible says, और बाइबल कहती है, John took her home. यूहन्ना उन्हें घर ले गया। All of you आप सब sitting over here, जो यहाँ बैठे हो, if you don't learn to care for your mother and father, अगर आप आपके माता या पिता की ख्याल रखना नहीं सीखते हो, you are going to have तो trouble. आप तकलीफ में आने वाले हो। नहीं, pastor, my father, you don't understand. नहीं पास्टर, आप मेरे पिताजी के बारे में आपको नहीं मालूम, Oh, you don't understand him. आपको नहीं पता हो कैसे। Oh, my mother. मेरी माँ, Every mother, हर एक माँ, they have had a journey. उनकी एक यात्रा रही है। Who knows what all they have gone through? किसे पता कौन कौन सी चीज से वो गुजरी The होंगी, pain that they have gone जो through. दर्द से वो गुजरी होंगी, Nobody knows. कोई नहीं जानता। Your father, आपके पिताजी, the pain, वो दर्द जो गुजरे, the brokenness. जो टूटेपन से वो गुजरे, And your parents were shaped by the circumstances of life. और जीवन की परिस्थितियों ने आपके माता पिता को शर्मिंदा भी किया होगा। And some of you are ashamed to call your mom and dad as mom and dad in front of people. और आप में से कुछ लोगों के सामने आपने माता पिता को माता पिता कहने से भी शर्माते हो। Jesus hanging on the cross यीशु क्रूस पर लटके हैं, looks at his mother अपनी माँ की ओर and he देखते हैं says, Mom, और कहते हैं, माँ, John, यूहन्ना, he shall be your वो son. तेरा बेटा होगा, John, यूहन्ना, she shall be your ये mother. तेरी माँ होगी। Matthew 15 verse 4. मत्ती 15 अध्याय Okay. वचन 4। Jesus is saying, यीशु कह रहे हैं, honor your father and mother. अपने पिता और माँ का आदर करो। And then it says, फिर आगे कहता है, तेरी जबान है ना, वो संभाल. Don't speak evil against them. उनके खिलाफ बुराई बातें मत करो, Don't insult them. उनका अपमान मत करो। Especially लोगों के सामने. How to honor, how to honor. कैसे आदर करना है, Yeah, fellowship with them. उनके साथ संगति करो, Yeah, because as they grow older, क्योंकि जैसे उम्र में बढ़ते जाते हो, fellowship is important. संगति उनके लिए बहुत महत्व की है। Number 2, दूसरा, keep their dignity. उनकी शान बनाए रखो, Food, shelter, clothes. उनका खाना पहनना और छत। And number 3, और तीसरा, remember, याद they रखना are losing strength. वो ताकत खोते जा रहे हैं। Yeah, और तूने उसकी छड़ी होना है. Number 4, yeah, very चौथा good. नंबर, Jesus यीशु was abandoned on the cross. क्रूस पर उन्हें त्यागा गया। Yes, Matthew 27 verse 46. मत्ती 27 में 46, Jesus is hanging on the cross. यीशु क्रूस पर लटके हुए, The sin of the whole universe is upon him. पूरे संसार का पाप उनके ऊपर है, And he cries out and he says, और वो पुकार के कहते हैं, My God, मेरे प्रभु, my God, मेरे प्रभु, why have you forsaken me? आपने मुझे क्यों त्याग दिया। It's a cry from a broken heart. ये टूटे हृदय से निकलने वाली पुकार है। Why was this cry going? ये पुकारना क्यों हो रहा था, Because क्योंकि from eternity past, अनंत काल से ही Jesus had a union with God. यीशु का परमेश्वर के साथ एकता थी, Yeah, a relationship with God. एक रिश्ता था प्रभु के An साथ, intimacy with God. प्रभु के साथ घनिष्ठता थी, Until that time, और उस समय तक it continued. वो निरंतर जारी But रही। when the sin came, लेकिन जब पाप उन पर आया, Bible says, बाइबल कहती है, where there is sin, जहाँ पाप है God separates himself. प्रभु खुद को उससे अलग कर लेते हैं। Isaiah chapter 59 verse 2. यशायाह 59 अध्याय वचन 2, That sin, your sin, my sin, वो पाप, आपका पाप, मेरा when पाप, it came upon Jesus, जब वो यीशु पर आया, God left him. प्रभु उसे छोड़ कर गए, And as he left him, और जैसे उसे वो छोड़ कर गए, God turned his face around. प्रभु ने अपना चेहरा मोड़ लिया, And Jesus cried. और यीशु ने पुकार के And कहा, he says, और कहते हैं, My God, मेरे प्रभु, My God, मेरे प्रभु, why have you forsaken me? आपने मुझे क्यों त्याग दिया। So when Jesus was hanging on the cross, तो जब यीशु क्रूस पर लटके हुए थे, and the weight of sin came upon Jesus, और पाप का जो बोझ है यीशु के ऊपर आया, the Bible says, बाइबल कहती है, he became sin वो for us. पाप हमारे लिए बन गए।
And then the Bible says he took our sins on his body. फिर बाइबल कहती है उन्होंने हमारा पाप उनके शरीर पर लिया And और the judgment of God came. परमेश्वर का न्याय आया जो हमारे ऊपर आना था वो उनके ऊपर आया है. And as it came upon him, और जैसे वो उन पर आया yeah, suddenly अचानक से presence of God has left him. प्रभु की उपस्थिति उन्हें छोड़ के गई. But that moment, लेकिन उस क्षण में something happened. कुछ तो हुआ. That thing happened for you वो चीज आपके लिए हुई and for me. और मेरे लिए हुई. What happened, Pastor? क्या हुआ पास्टर? Isaiah 53 यशाया 53 and verse 11 says, और वचन 11 कहता है the justice nature of God was satisfied. परमेश्वर का न्यायी स्वभाव संतुष्ट हुआ. Yeah. Now God is saying, अभी प्रभु कह रहे because of my son, मेरे बेटे के कारण I can forgive anybody. मैं किसी को भी क्षमा कर सकता हूँ. Why forgiveness? क्षमा क्यों? Because the justice nature of God क्योंकि प्रभु का न्यायी स्वभाव has been satisfied. वो संतुष्ट किया गया है. Number 5. पांचवा Yeah, number 5 पांचवा नंबर is the word called trouble. शब्द है जिसे कहते हैं तकलीफ. Yeah, John 19 verse 28. यूहन्ना 19 में 28 Jesus said, यीशु ने कहा I thirst. मैं प्यासा हूँ. Now from the time Jesus said, you know, into your hands I give my spirit. जिस समय से यीशु ने कहा मेरी आत्मा मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ, Before that, उसके पहले the time frame of 24 hours. उससे पहले जो 24 घंटे की समय रेखा, Yeah, the whole 24 hours. पूरे 24 घंटे It was about Jesus. वो यीशु के बारे में He थे. was caught. उनको पकड़ा गया, He was taken to people. उनको लोगों के पास ले जाया गया And they had a trial. और उन्होंने आरोप लगाए. And then he went through a lot of suffering. फिर बहुत सारे सताव से वो गुजरे. And then he was put on the cross. फिर उनको क्रूस पर लटकाया गया. And then we come here. फिर हम यहाँ आते हैं. सब लोग ठीक हो ना? In that 24 hours, वो 24 घंटे के बीच something happened. कुछ तो हुआ. This Jesus, ये जो यीशु है, he's not somebody who just came. ये ऐसे नहीं थे कि कोई आ गया सिर्फ. No, 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 no. नहीं नहीं नहीं. From Genesis, उत्पत्ति से ही God was saying, प्रभु कह रहे थे my son will come. मेरा बेटा आएगा. Exodus, निर्गमन में he will come. वो आएगा. Leviticus, लय व्यवस्था में he will come. वो आएगा. Numbers, गिनती में he will वो come. आएगा. Deuteronomy, व्यवस्था विवरण he will वो come. आएगा. The prophets, भविष्यद्वक्ता he will come. वो आएगा. In that 24 hours time, वो 24 घंटे के समय के बीच 20 prophecies about Jesus were fulfilled. यीशु के बारे में की गई 20 भविष्यवाणियां पूरी हुई. So this was not some people who did not like Jesus. They came against him. They put on the cross. No, 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 no. ये ऐसा नहीं था कि यीशु को जो लोग पसंद नहीं करते थे ऐसे कुछ लोग साथ में आए और उन्होंने यीशु को क्रूस के ऊपर लटकाया. ऐसा कुछ नहीं हुआ. It was all planned. ये सब योजना बनाई गई थी. Prophecies after prophecies. भविष्यवाणियों के बाद भविष्यवाणी. My son will come. मेरा बेटा आएगा. He will die like वो this. ऐसे मरेगा. This will happen. ये होने वाला This है. will happen. ये होने वाला है. In that 24 वो hours, 24 घंटे में 20 prophecies. 20 भविष्यवाणियां. Acts 2:23. प्रेरित 2 में 23. God had planned everything. प्रभु ने सब चीजों की योजना बना के रखी थी And he had decided. और उन्होंने ठान लिया था. किसका प्लान था? प्रभु का. कभी जब मनुष्य का जन्म हुआ तभी नहीं, उसके जन्म होने के पहले. 1 Corinthians 2:8. पहला कुरिन्थियों 2 में 8. The rulers of this world इस संसार के जो शासक हैं did not know anything. उनको कुछ भी नहीं पता था And none of them knew it. और उनमें से किसी को पता नहीं था. And if they would have known, और यदि उनको पता होता ना, उन्होंने यीशु को क्रूस के ऊपर डाला नहीं होता. यस, The foolishness of God परमेश्वर की मूर्खता is far greater वो बहुत ज्यादा महान है than the wisest wisdom of man. मनुष्य की सबसे उत्तम बुद्धि से भी ज्यादा. तो पास्टर आप हमें क्या बोल रहे? प्रभु के साथ चलो. कितना भी कोई भी प्लान करो, डर मत. आमीन. जिसको जो करना है करने दे. आखिरी में तू ही जीतने वाला है. आमीन. जिसको जो करना है करो. यस. In the end, my God will win. अंत में मेरे प्रभु ही जीतेंगे And I will win. और मैं ही जीतूंगा. In Jesus' name. यीशु के नाम में. And all God's people और सारे say, प्रभु के लोग कहे Amen. आमीन.